Heavenly Father, thank you, Lord, for your new day you added in my life, in our life. Because of your mercy and grace, we are come into your presence. Fill us, guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. We are going to sing one song. I come before you today, and there is just one thing that I want to say. We will sing the song and glorify the Lord's name. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. I just want you. Thank you, Lord, for all you given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Hallelujah.
Our God is a way maker. The Bible says, "Behold, I will do something now. Now it will spring forth. Will you not aware of it? I will ever make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. Yes, the Lord, you make miracles and promises." Yes, we close your eyes and we worship our Lord, our Almighty Father. We thank you. We thank you for your grace and mercies in our life, Lord. Your presence is filling us. We thank you, Father. You are a way maker. You are a miracle worker, Father. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I will worship you. I will worship you. You are here, walking in this place. I will worship you. I will worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I will worship you. I will worship you. You are here, turning lives around. I will worship you. I will worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I will worship you. I will worship you. You are here, walking in this place. I will worship you. I will worship you. You are way maker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, walking in this place. I will worship you. I will worship you. You are here, walking in this place. I will worship you. I will worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here,
moving in our midst. I will worship you. I will worship you. You are here, walking in this place. I will worship you. I will worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Thank you, Lord, for your presence and moving around us. Mold us, shape us, guide us. Submitting remaining time into your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Amen. This is a good day. God is with us. Let us welcome Brother Rajendran from Chhattisgarh to share the word of God. Amen. Please come in, brother. Praise the Lord. Thank you. हालेलुया। परमेश्वर ने हमको सुंदर समय दिया, उसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और परमेश्वर ने सुंदर समय कितने लोग तो दुनिया को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर हमको सुंदर समय दिया है, उसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे और सुंदर सा वचन सुंदर समय हम सीखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम छोटा सा प्रार्थना कर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, वचनों को सुनने के लिए उसका मन को तैयार करेंगे। अपने आंखों को बंद कर हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, आपने सुंदर समय दिया, आपको धन्यवाद करता हूँ राजा। अब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, अब हाँ राजा परमेश्वर, हाँ धन्यवाद करते राजा, सुबह से लेकर समय संभाला, सुंदर समय दिया, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते राजा। वहाँ राजा जो वचन लिखने जा रहे परमेश्वर, वचन के द्वारा अगुवाई कर राह दिखा परमेश्वर राजा, हमको राह दिखाना अद्भुत कार्य है। छोटे से विनती यीशु के नाम से मांगे, सुना कबूल कर पिता, आमीन। हमारे देखते हैं कि एक गांव में दो दोस्त थे। दो दोस्त लोग साथ में पढ़ते थे हर एक दिन, और उन 2 साल 3 साल ऐसे साथ पढ़ते उन लोग वचनों को आगे बढ़ते थे। और वो क्रिश्चियन परिवार के थे 2 लड़के लोग। फिर 2 लड़के लोग बढ़ते उन लोग एक साल दोनों जन शादी किए। शादी करने के बाद उन्होंने दोनों को जॉब मिल गया था, एक गवर्नमेंट जॉब दोनों को मिला। तो गवर्नमेंट जॉबों को उन लोग फिर अच्छी तरह से उनके परिवार को चलाते थे। तो ये चलाते एक दोस्त ने क्या किया, दूसरों को लालच को, दूसरों को राह को देखकर उसने एक गलत राह की ओर आकर्षित किया। हम देखते हैं परिवार में जब बढ़ते हैं तो बच्चे, उनके परिवार बढ़ते जाता है, उनको संकट, उनको हर एक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो परमेश्वर की राहों में बढ़कर उसके आगे चलता है, वह परमेश्वर की मंजिल को पाता है। तो उसी तरह दोनों दोस्त थे। एक दोस्त ने उसके दोस्तों की संगति को देखकर, उन लोग मेरे से आगे बढ़ रहे हैं, सेम पेमेंट ले रहे हैं, मैं भी सेम पेमेंट ले रहा हूँ, वो भी सेम पेमेंट, लेकिन मेरा पेमेंट से भी वो आगे, उसका परिवार आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े घर ऐसे ले रहा है, तो मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। इस तरह की वो सोच करता था। फिर करते क्यों, कहाँ से पैसा ला रहा है, इसलिए सोच करके वह एक गलत राहों की ओर निकल चलता है। लेकिन उसका एक दोस्त था, वो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसी राहों में चलते चलते परमेश्वर उसको उठाता है। लेकिन यह नहीं जानता था कि परमेश्वर हमको उठाएगा। फिर वो गलत राहों में ले चलता है, चला जाता है, एक ही बार चला जाता है, परमेश्वर की राहों को छोड़कर एक गंदगी के राहों में पड़ जाता है। हम उसी तरह देखते हैं कि वचन हमको योर फाउंडेशन परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताता है। मत्ती अध्याय 7 चैप्टर 7 24-28। इस वचन को हम पढ़कर पर इस वचनों से द्वारा हमको परमेश्वर का क्या सिखाता है, इस वचन को सुनेंगे। मत्ती अध्याय 7 उसका 24-27।
इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसके अपने घर चट्टान पर बनाया है, और वो मेघ बरसा और बाढ़ आई और अंधियारी छाई और वह घर से उठकर फिर से उसे वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है वह उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान बना ठहरेगा जिसने अपने घर बालू पर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर सुंदर से वचन हमसे द्वारा हमको अगुवाई करता है। हम देखिए दो दोस्त थे, दोस्तों में से दोनों दोस्त क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन जो परमेश्वर को सच्चे मन से विश्वास करके परमेश्वर को नहीं चला वह गलत राहों में चल गया। लेकिन जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर विश्वास कर उस राहों में पकड़ा तो वह परमेश्वर के आगे बढ़ा। उसी तरह परमेश्वर पहला वचन 24 कहता है, इसलिए जो कोई मेरे बातों को सुनकर उस पर चलता है। परमेश्वर हमको सिखाता है कि दुनिया में किस तरह चलना चाहिए। परमेश्वर हमको बताता है किस समय किस राह को हमको अगुवाई करना चाहिए। इस तरह की बात हमको बताता है तो परमेश्वर उस बातों को पकड़ के जो चलता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य के समान कहता है। हमको वचन को देखेंगे तो हमको वचन बताता है कि परमेश्वर के वचन को एक सुनने की तरह नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को उस पर चलने की तरह बनना चाहिए। जे याकूब का उसका 1 अध्याय 22 और 23, जेम्स 1 chapter 22 to 23, दिस वर्स सेज कि वचन को एक सुनने की तरह नहीं लेकिन अपने जीवन में लागू करके उस तरह चलने के द्वारा बनना चाहिए। उसी से स्पष्ट रूप से बताता है कि 24 वचन में जो वचन को परमेश्वर को सुनता है उस तरह चलता है तो परमेश्वर उसको जरूर और बुद्धिमान मनुष्य बताता है। और एक जो व्यक्ति था जो उसने अपने दोस्तों को देखकर वो गलत राहों में चल गया तो वो निर्बुद्धि मनुष्य है। वो भी परमेश्वर का वचन सुना, ये भी सुना, लेकिन परमेश्वर के वचन को बनकर स्थिर में नहीं खड़ा हो सका। वह एक गलत राहों में चल गया, गलत संगति में चल गया। उसी किस तरह का है कि हम देखते हैं ये यिर्मयाह उसका 33 chapter 30 and 32 ये वचन कहता है कि तूने तो मेरे लिए गाना बजाया, गीतों के द्वारा स्तुति आराधना किया, ढोलक बजाई। इस्राएल लोगों को परमेश्वर कहता है लेकिन तेरा मन मेरे में प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन हम भी गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति वचन के द्वारा हम गाते हैं, सुनते हैं, रोज आते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं रहता है तो हम एक निर्बुद्धि, परमेश्वर हमको अगुवाई, परमेश्वर के राहों से हम बचकर चलकर गलत राहों को निकल चलते हैं। उस तरह परमेश्वर उसी को ही निर्बुद्धि कहता है। परमेश्वर हमारा जीवन में आज बताता है कि हम किस जगह में हमारा फाउंडेशन बांधे हैं, हमारे जीवन का नींव क्या है। परमेश्वर वचन हमको बताता है कि 1 Corinthians 3 chapter 11 वर्स, क्योंकि हमारा नींव तो यीशु मसीह है। हम देखेंगे हमारा नींव क्या है कि हम जब विश्वास किए थे तो हम परमेश्वर को विश्वास कर उसको नए जीवन के द्वारा हम नए जीवन को स्टार्ट किए थे। लेकिन हमारा जीवन हम 5 साल 6 साल 7 साल हो रहा होगा हमारा विश्वास, लेकिन हमारा नींव अब तक किसमें स्थिर है। हम देखते हैं कि सांसारिक जीवन की ओर क्या परमेश्वर के जीवन की ओर हम इसी तरह के हम इस वचन कहता है कि एक स्पष्ट रूप से क्योंकि हमारा नींव पर यीशु मसीह पर रहना चाहिए। और एक बार खोलकर उस वचन को पढ़ेंगे कि हमारा नींव सच में परमेश्वर की वचन बाइबल क्या बताती है कि हमारा नींव क्या है। कि हमारा नींव तो एक परमेश्वर के नींव में बने हुए उसके अगुवाई में चलना चाहिए। 3 अध्याय उसका 11 वचन हमको परमेश्वर के वचन को बताता है कि हमारा नींव किस जगह खड़े होकर हमारा नींव को चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ही हमारा नींव को, जब एक घर बनाता है, जब एक इंसान घर बनाता है, तब उसका फाउंडेशन एक बड़े मजबूत के साथ एक पत्थर के द्वारा एक अच्छे सीमेंट डालकर उसको मजबूत करता है तो उसका घर सालों साल 30 साल 40 साल उसके घर बनकर रहेगा, स्थिर में खड़ा रहता है। लेकिन जो पैसा के लालच में अपने घर को एक नॉर्मल की तरह रेती के कम सीमेंट के द्वारा यूज कर उसके इस तरह से बनाता है तो उसका घर गिर जाता है। तो परमेश्वर इस घर के द्वारा हम हमेशा घर बनाते हैं, तो उसी तरह हमारे जीवन को भी एक मजबूत की तरह बनाकर परमेश्वर के राहों में स्थिर करके रखना चाहिए। 1 Corinthians 3 chapter 11 वर्स, क्योंकि उसी नींव को छोड़ जो पड़ी है
और वह यीशु मसीह है, क्योंकि दूसरा नींव नहीं डाल सकता। क्योंकि हमारा जीवन का और परमेश्वर वचनों में कहता है, मैं ही परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के रक्षक हूँ, मैं ही जीवन बनाने वाला परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर ही हमारा नींव है, तो वही नींव को बनाकर हमारे वचनों के द्वारा हमारे जीवन में भरकर उसको अगुवाई करना चाहिए। हम देखेंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट में एक दो कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, आहाज के राजा और एजिकेल। जो अहाब था, तो ये सेकंड क्रॉनिकल्स 28 चैप्टर 1-4, ये आहाज राजा तो था। हम बाइबल को पढ़ेंगे तो आहाज में बताएगा कि किस तरह वो आहाज था, किस तरह। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 1-4। जब आहाज राज करने के लिए लगा, तब वह 20 वर्ष का था और 16 के वर्ष का यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने महापुरुष और दाऊद के सामने काम को नहीं कर सकता, जो यहोवा के दृष्टि में था, परंतु इस्राएल परमेश्वर के राज्य में करता था। जो हम देखते हैं इस्राएल में राज्य करता था, तो वह उसमें वो राजा आहाज तक नाम था, लेकिन वह देखता था कि वह उस दूसरे राज्य में आते थे। उन लोग सोचते थे कि वो आहाज राजा सोचता था कि दूसरे देवताओं को मैं पूजूंगा तो मैं उसका आराधना करूंगा, उसको दंडवत करूंगा, उसका आरती उतारूंगा, तो मैं भी दूसरे राज्य की तरफ बड़ा राज्य बना सकूंगा। इस तरह की सोच में वो था। हम देखते हैं 22 वचन भी कहता है, क्योंकि वे समान राज्य आहाज के यहोवा के और विश्वासघाती किया, कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं था उस राह को चुना, और वह बाल देवता इस तरह के गाँव बैल बनाकर मूर्ति बनाकर वह स्तुति आराधना करता गया, कि दूसरा राज्य को देखकर वह उस राह में चलता गया। लेकिन पर वह नहीं जानता था कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाऊंगा तो मैं किस राह में जाऊंगा, वो नहीं जानता था। फिर वहाँ पे उसको आखिरी में मृत्यु हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इस राजाओं को देखते हैं, एक राजा का बेटा राजा ही बनता है। उसी तरह वो आहाब का राजा का बेटा हेजकियल राजा करने के लिए आया। तो वो सोचने लगा, यह हेजकियल मेरे पिताजी यहोवा परमेश्वर की भी आराधना किया, उसके बाद छोड़कर दूसरों राजाओं को देखकर वह उसने अपने बाल देवता मूर्ति पूजा करने के लिए ये भी स्टार्ट किया, लेकिन यह विजय विन नहीं पाया है। क्यों, क्या हो गया बोल के वो सोचने लगा। उसके फिर पुरोहित को उसके दाऊद के राजाओं के बारे में पढ़ने के लिए चालू किया। हम देखते हैं 29 चैप्टर में बताता है कि एजिकेल राजा ने किस तरह से उसके राज्य को शुद्ध करके उसके और अपने जीवन को, जो राज्य गिर गया था, उसको उसने उठा दिया परमेश्वर का नाम से। हम देखते हैं जब एजिकेल राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था और 19 वर्ष के यरूशलेम से राज्य करता रहा। उसकी माता और अभियान की जकरिया की बेटी थी, और वह मल पुरुष दाऊद ने किया हुआ, अर्थात वह यहोवा के दृष्टि में ठीक था, वैसे ही उसने नहीं किया। फिर उसने, हम देखते हैं जो एजिकेल राजा करने आया, तब उसने पढ़ने शुरू किया कि मेरे पिताजी ने तो यहोवा के राज्य आराधना किया, लेकिन वह तो उसको छोड़कर जो दूसरा राज्य के देवता लोग को पूजते थे, जैसे बाल देवता, मूर्ति पूजा, पानी को, इस तरह से देवता को दूसरे राज्य के पूजते थे, तो उन लोग विजय पाते थे। तो उसी को देखकर उसके पिताजी ने आहाज ने उस तक की आराधना किया, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं पाया। तो फिर हेजकेल ने उसके पिताजी के बारे में पढ़ा, उसके राज्य के पुरखों के बारे में पढ़ा। पढ़ने के बाद वो स्टार्ट किया, जो मूर्ति जो सुलेमान ने राज्य मंदिर बनाया था, उसमें जो अपने पिताजी ने एक मूर्ति पूजा को पूरा भर के था, तो उसने क्या किया, वो मूर्ति पूरा सुलेमान के मंदिर को पूरा शुद्धिकरण किया। हम देखते हैं 3 वचन से 7 वचन से परमेश्वर वचन बताता है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खोलवा दिया और उसके सम्मान में कराई किया, और तब उनने अपने याजक को लेकर को वे आकर पूर्व के चारों ओर इकट्ठा किया, और उसने कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों को परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मेल निकालो, कि देखो हमारा पुरखों ने विश्वासघात करके हमें कर्म किया था,
जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है और उसको ताज करने का यहोवा के निवास में मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उसने यहोश के द्वारा बंद किया और दीपक को बुझा दिया था और उन्हें पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाई था और न होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा के क्रोध यहूदियों का और यरूशलेम पे भटका है और इसके ऐसे किया है कि वे मारे। फिर वह चकित होने लग और ताली बजाने का कारण हो गए जाए, जैसे कि तुमने अपनी आंखों से कारण देखा है रहा है। फिर इस तरह से अपने एजिकेल ने उन वचनों के द्वारा उसने पर स्टडी किया कि मेरे पूर्वजों ने किस तरह से परमेश्वर उनको लीड किया, उसको देखकर वह चलाया। तो एजिकेल अपने उसके द्वारा परमेश्वर ने बाद में बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए कि वो किस तरह विजय पाया। हम देखते हैं कि वचन में बताता है कि एजिकेल जब एक राजा ने उसको घेर लिया था, एक राजा ने घेर लिया था, 3 महीने तक घेरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको विजय दिया कि परमेश्वर ने उसको हर एक जन उसको थूके कि तेरा राज्य को सबको एक एक करके वो फिलिस्तीन के राजा आकर लेके जा रहा है। तो किस परमेश्वर की स्तुति करता है तो उसके राज्य के हर एक सैनिक से लेकर हर एक लोग उसको तुच्छ जाने किस कैसे तू राजा है। तेरे पिताजी को देख खड़ा होकर लड़ाई किया लेकिन वह नहीं रुका तेरे जैसा बोल के वह उनको सताएगा। लेकिन हिजकिय्याह ने स्थिर बना रहा अपने विश्वास पर और परमेश्वर विश्वास कर रहा। तो वह आकर उसने स्वर्गदूतों को भेजकर उसने उस घर को उनको सैनिक को गिरा के मरवा डाला। तो उसी तरह हम भी भाइयों हम देखते हैं हमारे जीवन में हम भी परमेश्वर के वचन तो सुनते हैं, लेकिन हम किस जगह हम चलते हैं, किस राह में चलते हैं हम नहीं जानते। हम निकालिए कोरिन्थियों के फिलिपियों के नाम से उसमें पौलुस के पत्र का उसमें भी लिखा है कि परमेश्वर हमको जब युद्ध करते हैं 2 कोरिन्थियन उसका 9 चैप्टर उसका 10 चैप्टर उसका 3 अध्याय में 3 और 4 में कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर से चलते फिरते हैं तो भी शरीर के नहीं अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा लड़ाई तो हथियार शरीर नहीं और ढाल का ढेर देने वाला के परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर के वचन में कहा कि दो फाउंडेशन के बारे में हम सीखे हैं, तो इसी वचन के द्वारा बताता है कि कोरिन्थियों के नाम के 10 अध्याय के 3 वचन में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर से चलते हैं, हम चलते हैं शरीर से हम, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब तक हमारे दिल में हमारे माइंड में हमारे परमेश्वर के अनुग्रह हमने नहीं चलेंगे तो हमारा लड़ाई व्यर्थ है। जिस तरह हिजकिय्याह ने अपनी लड़ाई में हर कामों में परमेश्वर के साथ रहकर बढ़ा, परमेश्वर को अगुवाई कर उनको राहों में चला, जिस तरह परमेश्वर उसको बताया उसी तरह वो अगुवाई उसी तरह वो विजय पाया। उसके कितने लाभ उतना सैनिक नहीं थे, लेकिन उसके विरुद्ध जो सैनिक था उससे भी बढ़कर थे, हजारों सैनिक थे, लेकिन तभी से भी उसने आगे पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसको विश्वास था कि परमेश्वर ही मुझे लीड करेगा, परमेश्वर ही मुझे विजय देगा। तो भाई बहनों में आज देखेंगे इस विजय से कि हमारे भी जीवन में हम भी दोस्तों को देखकर हमारे जीवन को हम भी गलत राहों की ओर डालने की सोचते हैं, लेकिन भाइयों मत उस राह को मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरा वचन को सुनकर वो अच्छी एक पक्की नींव बनाएगा तो उसमें खड़ा रहेगा। तो कितनी आंधियारी, कितने संकट, कितने दुख, कितने तकलीफ आएगा, लेकिन उससे भी परमेश्वर हमको निकालेगा। उसलिए वचन कहता है, क्योंकि यद्यपि हमारे शरीर से हम चलते फिरते तो हैं, हम कहाँ भी जाते हैं, हम चलते हैं, हर एक जगह में जाते हैं, हर एक लोगों से मिलते हैं, हर एक काम करते हैं तो हमारे शरीर के द्वारा करते हैं, लेकिन तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम जो भी काम करते हैं अपने शरीर से, अपने दिमाग से, हमारे हाथों से हम नहीं करते, लेकिन जो परमेश्वर की शक्ति है वो हमारे जीवन में रहेगा तो हमको जरूर विजय दिलाएगा। उसलिए वचन कहता है कि तो भी शरीर के अनुसार नहीं चलते, नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा लड़ाई तो हथियार शरीर नहीं। हम वचन कहते हैं स्पष्ट रूप से हमारे जो लड़ाई है, जो हमारा हथियार है वो हमारे शरीर, हमारा हाथ नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो वचन को हम पकड़ कर चलेंगे तो हम जो भी लड़ाई से हम जो भी लड़ाई हम लड़ेंगे उससे हम जरूर हम विजय पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमको सिखाता है कि जो लड़ाई तुम शरीर से नहीं लड़ सकते, पर घर में को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा
की सामर्थ्य है। जो लड़ाई हम जीते हैं, जो लड़ाई हम करते हैं, उसी के द्वारा परमेश्वर ही हमारे हाथ में रखकर हमको अगुवाई करेगा, तो हम जरूर हर एक कामों को हम विजय पाएंगे। प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन को हम सोचिए, हम जीवन में कहीं भी हम भटके होंगे, जीवन में हम परमेश्वर को धन्यवाद करना छोड़े होंगे, धन्यवाद को परमेश्वर के राह को भूलकर हम गलत राहों में चले होंगे। लेकिन प्यारे भाइयों, आज वचन आपका मन में एक बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक अच्छा नींव बांधी है। आज परमेश्वर ने आज तुम्हारे लिए अच्छा फाउंडेशन बांध रहा है। तुम अपने जीवन को खोलिए और परखिए और उस वचन के द्वारा चलिए जो परमेश्वर तुम्हें राह दिखाया है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे राह खोला है, उस वचन के द्वारा चलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आज तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता है। हम देखते हैं कितने दोस्त हमको गलत गलत राह बताते हैं, गलत गलत सिखाते हैं, लेकिन वह सही राहों में हमको नहीं सिखा सकते। वह एक जगह में हम गिरा देंगे, क्योंकि हम नहीं जा सकते कि किस जगह हम जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के मुड़िए और परमेश्वर की अगुवाई करके हमको चलाइए। हमारी ये हम आंखें को बंद कर हम परमेश्वर को और देखेंगे कि परमेश्वर हमको किस तरह से, जिसमें हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में हम भूल चुके होंगे, हम जीवन में हम खो चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर और जरूर से हमको राह निकालेगा और हमारे मन को अच्छे तरह से एक फाउंडेशन के द्वारा, एक नींव के द्वारा हमको खड़ा करेगा। हम वचन कहता है कि 1 कोरिन्थियों 3:11 में सच में परमेश्वर ही हमारा नींव है, तो उसके द्वारा दूसरा नींव कोई नहीं है, तो उसी नींव के द्वारा हम बढ़कर और आगे परमेश्वर के जीवन में हम अगुवाई करेंगे। धन्यवाद खुदा परमेश्वर को, धन्यवाद का तेरा अच्छा, आपने सुंदर समय दिया, आपने सुंदर से वचन दिया परमेश्वर। जो आपका नींव परमेश्वर, जो फाउंडेशन आपने हमको बनाया है, वो फाउंडेशन को पकड़कर उस राह में चलने के लिए हमको अगुवाई करा। अच्छा, जो हम गिर जाते हैं, लेकिन आप उठाने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करता।